पहला करंथी दूसरा अध्याय We read here things which eye has not seen, ears heard, entered the heart. All that God has prepared for those who love. 9वां वचन। परंतु जैसे लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखा, कान ने नहीं सुना और जो मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी है, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वाले के लिए तैयार की है। Here we see all that God has prepared. वहाँ वे सभी चीजों के विषय में हम देखते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है। Not only the spiritual heavenly things, केवल ये स्वर्गीय आत्मिक चीजें ही नहीं, not only the kingdom of God, परमेश्वर का राज ही नहीं, not only the eternal life, वो अनंत जीवन ही नहीं, even earthly things also. इस संसार के चीजें भी, So this is what we read. All that God has prepared. वो सारी चीजें जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई हैं। So our duty, our responsibility, our duty is to love Him. That's all. हमारा एक ही कर्तव्य है, वो है कि उनसे प्रेम रखना। So He is faithful to provide all those things. वो विश्वास योग्य है ये सारी चीजें हमको देने के लिए। So we need not bother about all those things. इसलिए हमें उन चीजों के विषय में हमें चिंतित होने की जरूरत नहीं है। So what are all the things He has prepared, He has ordained for us, He will grant us at His time. वो सारी चीजें जो प्रभु ने हमारे लिए रखी है, वो उसके समय पर वो हमें सारी चीजें देगा। Our God of provision. हमारा प्रभु एक है जो हमको सारी चीजें देता है। He will provide वो हमें देगा in His time. उनके समय पर। But our job, our part is to love Him. That's all. हमारा काम एक ही है कि हम उनसे प्रेम रखें। So this morning I want to show 3 men of God. मैं 3 भक्त जनों के विषय में मैं बताना चाहता First, हूँ। let us see from the life of David, Psalm 27. हम दावीद के जीवन से देखेंगे, भजन 27 से। Psalm 27. One of the best psalms for David. दावीद का एक अति सुंदर भजन संहिता है। So here we read in verse 4. One thing I have asked from the Lord, that I shall seek, that I may dwell in the house of the Lord for all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to meditate in His temple. एक वर मैंने, भजन संहिता 27:4, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। See, the one thing he desired, एक ही चीज उन्होंने आग्रह किया था। I don't know whether this psalm written before he was made king, मुझे नहीं मालूम कि ये जो भजन संहिता लिखा है वो राजा बनने से पहले लिखा था or after he was made king. कि राजा बनने के बाद लिखा था। We don't know exactly, हमें सही रीति से नहीं मालूम। but I imagine like this, I see like this. मैं इस रीति से उसको देखता हूँ। Before he was made king, राजा बनने से पहले this psalm might have been written. शायद ये भजन संहिता लिखा गया होगा। There we see his desire, the only desire he had. वहाँ उनका जो तीव्र एक लक्ष्य था, So he wanted to see the beauty of the Lord, that's all. परमेश्वर की सुंदरता को वो देखना चाहता था। So one of the secrets of the men of God, एक दैविक जन का एक रहस्य। so apart from this, I want to show other things also. इसके अलावा मैं अन्य चीजों को भी दिखाना चाहता हूँ। See, either in the case of Jesus, यीशु के जीवन से, either in the life of Paul, पौलुस के जीवन से, either in the life of David, या दावीद के जीवन से, they all very successfully they completed the race. उन सबों ने उनका अंतिम क्षण तक
एक अच्छी रीति से वो दौड़ को पूरा किया। Just I want to show that 3 verses. वो 3 वचन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। See, Acts chapter 13. Acts 13. प्रेरितों का काम 13वां अध्याय Verse 36, I think so. Acts 13, verse 36. For David, after he had served the purpose of God his own generation, he fell asleep. और दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया। David, after he had served the purpose of God, his own generation, he fell asleep. दावीद परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया। Yes, he could he could finish his race. वह अपना दौड़ पूरा कर पाया। Though such a big tragedy happened in his life, उसके जीवन such a major fall in his life, उसके जीवन में एक बहुत बड़ा पतन हुआ। ये सब होने के पश्चात भी so one cross reference, 1 Kings chapter 5, एक राजा, really this verse will encourage us. 5वां वचन, ये वचन हमें जरूर प्रोत्साहित करेगा। 1 Kings chapter 5, पहला राजा 5वां अध्याय that we read. Except only one thing, no? एक चीज छोड़कर So written about David. दाविद के विषय में इस प्रकार से लिखा हुआ है। There we except the matter of Uriah, he did all Lord's. Can anyone find out that verse? उरिया के विषय को छोड़कर बाकी सारी चीजों ने Yes. उन्होंने Except that matter of Uriah. उरिया के विषय को छोड़कर बाकी सारी चीजों में दावीद ने अपना परमेश्वर का हित पूरा किया। He did all other things. He completed his race. उन्होंने बाकी सारी चीजें सही रीति से दौड़ पूरा किया। But in the Old Testament book, it was written like that. पुराने नियम में इस प्रकार से लिखा हुआ है, But in Acts 13, लेकिन नए करार में प्रेरितों के काम में देखिए, we don't find like that. वहां ऐसा नहीं लिखा। He didn't mention about that. वहां उरिया के बारे में बताया ही नहीं है। So what a good God. कितना अच्छा प्रभु है हमारा। It is written in Old Testament only. पुराने नियम में वैसे लिखा है। Verse 1 Kings. Oh, sorry. 1 Kings 16. Because David did what was right in the sight of the Lord and had not turned aside from anything that he commanded him all the days of his life, except in the case of Uriah. क्योंकि दाऊद वो किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, और हित्ती उरिया की बात के सिवाय और किसी बात में यहोवा की किसी आज्ञा से जीवन भर कभी न मुड़ा। What a wonderful verse. कितना अद्भुत वचन है। He made such a major crimes. उन्होंने इतनी बड़ी एक बुरी चीज की। He was the murderer and adulterer. वहां एक खूनी और व्यभिचारी था वो। But God could say like this. He could give such a good comment about him. ऐसे होने के पश्चात भी प्रभु उसके विषय में देखिए कितना अच्छा बोलते हैं। David did what was right in the sight of the Lord and had not turned aside from anything he commanded. दावीद ने सारी चीजें परमेश्वर के अनुसार ही की और कहीं पर भी वो नहीं मुड़ा, सिवाय वो उरिया के विषय में। But in the New Testament, परंतु नए करार में we cannot see this words in the except the case of Uriah. लेकिन नए करार में देखिए कैसे लिखा है, वहां उरिया के विषय में कुछ बोला ही नहीं है। What a good God.
कितना अच्छा परमेश्वर है हमारा। He even won't remember all those things. वो हमारी बीती हुई बुराइयों को याद भी नहीं करता है। So, my dear brothers, मेरे प्रिय भाइयों, my dear families, मेरे परिवारों, don't think about your major faults or crimes which you have done in the past. इसलिए आपके पिछले दिनों में जो बड़े पाप आपके जीवन में घटे हैं, That's not the matter at all for God. वो याद ना करें, वो परमेश्वर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। Once you have acknowledged and cleansed by the blood of Jesus means, अगर आपने अंगीकार करके परमेश्वर के रक्त के द्वारा आप धोए गए so हैं, what the new covenant spirit? तो नए करार की आत्मा क्या He है? won't even remember. वो याद भी नहीं करेगा। Even after that major fall, we can accomplish, we can finish our race. Amen. वो बड़े पाप में गिरने के पश्चात भी हम वो परमेश्वर का हित हमारे जीवन में हम कर सकते हैं। हम Even in- आमीन बोलेंगे। Even in the Old Testament man, such David can accomplish such life means how much we can. अगर पुराने नियम का एक व्यक्ति दावीद वो अपना परमेश्वर का हित पूरा कर सकता है, तो नए करार में हम कितना अधिक। Okay, he finished his race. उन्होंने अपना दौड़ पूरा किया। He served the purpose of God his own generation and fell asleep. उन्होंने अपने में सारी चीजें उन्होंने पूरा किया परमेश्वर के हित के अनुसार। Okay, David. दावीद। Then second person. दूसरा व्यक्ति, Second Timothy chapter 4. दूसरा तिमोथी चौथा अध्याय। Second Timothy chapter 4. दूसरा तिमोथी चौथा अध्याय। So here we see the about verse 7. See, I have fought the good fight. I have finished the course. I have kept the fight. Praise the Lord. This is about Paul. मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। I have fought the good fight, finished the course, kept the faith. मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मेरी दौड़ मैंने पूरी की है और मैं विश्वास की रखवाली करता हूँ। So Old Testament man David. पुराने नियम का दावीद के विषय में देखिए। Here we see Timothy. यहाँ तिमोथी के विषय में। Third, about Jesus. John chapter 17. यीशु के विषय में हम यूहन्ना John 17 chapter 17 verse 4. 17 का चौथा वचन। Father, I glorified you on the earth, having accomplished the work which you have given to me. Praise the Lord. यूहन्ना 17:4, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। Jesus also he accomplished the work what Father has given to him. यीशु ने भी जो काम पर उनके पिता ने दिया था वो पूरा किया। See, Paul, पौलुस, David, दावीद, Jesus, यीशु, all in their own generation, उन्होंने अपने they accomplished the work what God has given him. उन्होंने अपनी पीढ़ी में जो कार्य उनको सौंपा गया था वो निष्ठापूर्वक किया उन्होंने। So what's the secret behind all those three men? इन तीनों लोगों के पीछे क्या रहस्य था? There should be one secret. एक रहस्य उनके जीवन में रहा होगा। Such people only can accomplish and finish the race successfully. ऐसे व्यक्ति ही वो दौड़ को पूरा करके लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। Either Jesus or Paul or David. चाहे वो यीशु हो या दावीद हो या पौल हो। This is the only secret. यही एक रहस्य है। Yes, we can see from Psalm 27. हम भजन संहिता 27 से देखेंगे। Yes, again we'll back to Psalm 27. हम भजन संहिता 27 में वापस लौट के आएंगे। Verse 4. चौथा वचन। This is the only secret. यही वो रहस्य है। One thing I desire. एक ही चीज मैं आग्रह करता हूँ। Not two things. दो चीज नहीं। My dear brothers, मेरे प्रिय भाइयों, is there any two desires? क्या आपके अंदर दो आग्रह है क्या? It should be only one desire. एक ही आग्रह होना चाहिए। We may say, no, I don't have 20 desires or 2000 desires. Just I have only two desires. मेरे अंदर 2000 या 200 इच्छा नहीं है, लेकिन दो इच्छाएं हैं। Only one desire. एक ही इच्छा चाहिए। Such people alone can finish the race successfully. वही लोग हैं जो उनका दौड़ सही रीति से पूरा कर पाएंगे। They can alone
serve the purpose of God. वो ही परमेश्वर के उद्देश्यों को उनके जीवन में पूरा कर सकते हैं। What is the desire? वो क्या है आग्रह? See, behold, just I want to behold the beauty of the Lord and to meditate in His temple. उनकी परमेश्वर की मनोहरता को देखना और उनके मंदिर में वास करना। Already, David was anointed by King Samuel prophet. शमूएल नबी के द्वारा उनको अभिषेक किया था राजा बनने के लिए। He was already anointed. वो पहले से ही अभिषेकत थे। Even the King Saul, राजा साउल भी, he was possessed by some evil spirit. उनके अंदर एक दुष्ट आत्मा थी। But he had no desire at all for the throne. लेकिन उनको बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि मुझे वो राजगद्दी चाहिए। I want to emphasize this phrase. मैं इस कथन को मैं जरा ध्यान देना चाहता हूँ। God's will should be done in God's way, in God's time. परमेश्वर का हित परमेश्वर की रीति में परमेश्वर के समय पर होना चाहिए। One mark of the man of God. एक चिन्ह हर एक दैविक जन के जीवन के विषय में, Though it was God's will for David to be the king. ये परमेश्वर का हित था कि दावीद वहां राजा बनेगा। So he waited for God's time. परंतु वो परमेश्वर के समय के लिए रुका रहा। It should not be taken by any force at all. हमें जोर जबरदस्ती करके कुछ भी छीनना नहीं है। He didn't show any violence to take that position. वो पाने के लिए उसने कुछ जोर जबरदस्ती या कोई हिंसा नहीं किया। Lord, whether I am given that position or not, that's not the matter at all. चाहे वो मुझे स्थान दिया या नहीं दिया। Yes, the Samuel prophet anointed me to be the king. वो शमूएल नबी ने मुझे अभिषेकित किया है पहले से ही। But there's no desire, Lord. लेकिन मुझे उसकी कोई इच्छा नहीं है। I want to meditate you. मैं आपके ऊपर मनन करना चाहता हूँ। My only desire to see your glory. That's all. Your beauty of you. मेरा एक ही आग्रह है तेरी सुंदरता को मैं देखता रहूं। God's will, is it God's will? Yes, 100% God's will. क्या वो परमेश्वर का हित है? हाँ, 100% वो परमेश्वर का ही हित है। To be the king. वो राजा बनने के लिए 100% God's will. वो 100% उनका परमेश्वर का हित है। But that's not God's time. लेकिन परमेश्वर का समय नहीं आया अभी तक। Just we shall turn to 1 Samuel. हम एक शमूएल को वापस लौटेंगे। 1 Samuel chapter 24. एक शमूएल 24वां अध्याय 26. 26वां अध्याय Verse 8. Abishai said to David, no? 8वां वचन, अभिषाई ने दावीद से इस प्रकार से बोला। So Abishai said to David, today God has delivered your enemy into your hand. Now therefore, please let me strike him with the spear to the ground with one stroke. But I will not strike him the second time. But David said to Abishai, don't destroy him. For who can stretch out his hand against the Lord's anointed and be without guilt? David also said, as the Lord lives, surely the Lord will strike him. Number 1. Number 2, or his day will come that he dies. Number 2. Number 3, he will go down into the battle and perish. और 8 से 10 वचन, तब अभिषय ने दाऊद से कहा, परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है, इसलिए अब मैं उसको एक बार ऐसा मारूं कि भाला उसे भेदता हुआ भूमि में धंस जाए और मुझको उसे दूसरी बार मारना न पड़े। दाऊद ने अभिषय से कहा, उसे नष्ट न कर, क्योंकि यहोवा के अभिषेक पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, यहोवा ही उसको मारेगा, या तो वो अपनी मृत्यु से मरेगा या वो लड़ाई से जाकर मरेगा। See, there are 3 things there. वहां देखिए 3 चीजें लिखी हैं। One is the Lord will strike him. परमेश्वर उसको मारेगा। Number 2, दूसरा, his day will come that he dies. उनका समय आएगा जहां उनकी मृत्यु हो जाएगी, Or he will go down into the battle and die. या लड़ाई में जाकर वो मर जाएगा। Okay, see the second thing. There is very important thing. देखिए वो दूसरी चीज वो बहुत प्रमुख मुख्य है। For example, let us take like this. सोच के देखिए इस प्रकार से अगर रहा तो So nothing happened like he didn't strike him or didn't
perish into the battle. सोचो कि परमेश्वर ने उनको नहीं मारा और ना ही युद्ध में वे मरे, His day will come and he dies. और उनका जब समय आएगा तब वो मरेंगे। Yes, his day will come about 120 years back means. 120 साल के बाद शायद उसकी मृत्यु हो तो Then what will be the days of David? तो दावीद के दिनों के बारे में क्या होगा? He cannot come into the position. वो कभी भी वो राजगद्दी पे नहीं बैठ पाएगा। That means he had zero desire. इसका मतलब था कि उनके मन में बिल्कुल इच्छा नहीं थी वो राजगद्दी में बैठने का। Yes, brothers, we should have such a desire हाँ मेरे भाइयों, हम में से किसी को भी ऐसी इच्छा नहीं होनी चाहिए in these earthly things. इस संसार की चीजों में। So people are all seeking, they are seeking for position and honor. संसार के लोग ऐसे संसार की महिमा चाहते हैं। Even in the church, कलीसिया में भी so they are desiring for positions. वो हमेशा वो मुख्य स्थान चाहते हैं। If that position is taken out, अगर वो स्थान उनको उनके जीवन से हटा दिया गया, if you ask someone to step down from the eldership or facilitator, any अगर- position, अगर किसी को वो अगुवे के स्थान से उनको नीचे आने के लिए बोल देते हैं या कोई स्थान से नीचे कर दे, so most of the cases they get offended. कई चीजों में या कई रीतियों में वे हमेशा दुखी हो खेदित हो जाते हैं। There are people easily they are getting offended. वो जल्द ही खेदित हो जाते हैं। So for example, in some of our brothers' cases in our local churches, हमारे स्थानीय कलीसियाओं में भी भाइयों के बीच में a brother or sister or any family may not be the a regular member of our church. एक भाई या उनका परिवार हमेशा निरंतर नहीं आते होंगे मीटिंग्स में। Some local elders, after waiting for 3 months or 6 months, एक 3 महीने 6 महीने तक वो अगुवे उनको देखने के बाद the local elders would they plan, they will take his name from the WhatsApp group. तो वहाँ के स्थानिक अगुवे मिलकर ये निर्णय लेते हैं कि उनको व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दें। Only after 3 or 4 months only. 3 या 4 महीने के बाद ही ऐसा कार्य करते हैं। That's all. वो निकालते ही Immediately they will get offended. वो निकालते ही एकदम खेदित हो जाएंगे। In my local church, I would ask such a question like this. मैंने मेरे स्थानीय कलीसिया में मैंने इस प्रकार से एक प्रश्न पूछा, இது என்ன ஜீவ புஸ்தகத்தில் இருந்தா உன்னுடைய பேர் எடுத்து போட்டிருக்காங்க. क्या जीवन के पुस्तक से आपका नाम कट गया कि आप इतने दुखी हो गए? வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இருந்தானே எடுத்தாங்க. व्हाट्सएप ग्रुप से ही तो निकाला है। வாட்ஸ்அப் குரூப் என்ன புக் ஆஃப் லைஃபா? क्या व्हाट्सएप ग्रुप जीवन का पुस्तक है क्या? என்னமோ ஜீவ புஸ்தகத்துல இருந்து பேர் எடுத்த மாதிரி. ஏமா நீனு? क्या आप इस प्रकार से जीवन के पुस्तक से नाम निकाला, इस रीति से आप खेदित हो? ஒன்னில்லாத எம்டி வாட்ஸ்அப் குரூப் அதுக்கு போய் ஈஸிலி யூ ஆர் கெட்டிங் அஃபெண்டட் மீன்ஸ் कोई- வாட் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி யூ ஹேவ்? क्या कोई काम का नहीं है, इतना साधारण सा एक व्हाट्सएप ग्रुप से आपको निकालते ही आप इतने खेदित हो गए? வாட்ஸ்அப் குரூப் இஸ் நாட் புக் ஆஃப் லைஃப். व्हाट्सएप ग्रुप परमेश्वर का जीवन का पुस्तक नहीं है। For such silly things people are getting offended. ऐसे छोटे चीजों के लिए लोग खेदित हो जाते हैं। That means their number one desire is not Lord's beauty, not Lord's glory. इसका मतलब है कि उनके जीवन में प्रभु की सुंदरता उनके लिए प्रमुख नहीं है, पहलौटा नहीं है। They are worshipping themselves. वो अपने आप की आराधना करते हैं। Self is their idol. उनका खुद ही उनकी मूर्ति है। They are eager for their position and honor. They are seeking after it. वो उनकी आदर, उनकी स्थिति, उनकी प्रशंसा, यही वो चाहते हैं। But this Old Testament, he is challenging us. परंतु ये पुराने नियम के संत हम सबों को प्रोत्साहित करता है। Again, we'll go back to Psalm 27. हम वापस लौट के जाएंगे भजन संहिता 27। Such persons, those who have the only desire to behold the glory of the Lord, beauty of the Lord, such people alone can finish the race successfully. वही व्यक्ति जो इस प्रकार से परमेश्वर की सुंदरता को एकमात्र चाहते हैं, वही अपना दौड़ सफलता से पूरा कर पाएंगे। Yes, for such people God has given a wonderful promise in verse 5. ऐसे लोगों के लिए एक बहुत अच्छा वरदान 5वें वचन में लिखा Yes, हुआ है।
verse 5 and 6, there are two promises for such people. 5 और 6 में 2 वरदानें लिखी हैं। See verse 6. 6वां वचन देखिए। My head will be lifted up above my enemies around me. Praise the Lord. मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा मेरा सिर। My head will be lifted up above my enemies. मेरा सर मेरे शत्रुओं से ऊपर होगा। Who is my enemy in the new covenant spirit, the new covenant times? हमारे नए करार में हमारा शत्रु कौन है? Not the human enemies. कोई भी मनुष्य नहीं, No enemy at all. कोई भी मनुष्य का शत्रु नहीं। Our only enemy is Satan. हमारा एकमात्र शत्रु शैतान है। If we have the only desire to behold his beauty, अगर हमको परमेश्वर की सुंदरता एकमात्र हमारा चाहत है, yes, this is the promise for such people. तो यही वरदान है उन लोगों के लिए। Our heads will be lifted up above Satan. Amen. हमारा सिर वो शैतान के विरोध में खड़ा रहेगा। Be sure this is a promise we should claim. ये सच्चा है, ये हमको लेना है। Satan will be always under our feet. शैतान हमारे पांवों तले हमेशा रहेगा। We can exercise authority over him. हम शैतान के ऊपर अधिकार जताएंगे। We can bind his forces. हम उनकी शक्तियों को हम बांधेंगे। Yes, satanic forces are all around us. शैतान की शक्तियां हमारे चारों ओर है। We and our family and our church should be the threat to his kingdom. हम, हमारा परिवार और हमारा कलीसिया उनके विरोध में खड़े होने वाले एक थ्रेट होना चाहिए। Yes, that should be the case. एक धमकी होना चाहिए, यही हमारी इच्छा है। Again, one more promise we see in verse 5. हम एक और, In the day of trouble, he will conceal me his tabernacle. In the secret place of his tent, he will hide me. He will lift me up on a rock. विपत्ति के दिन मैं अपने मंडप में छिपा रहूंगा, रखेगा, और तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। In verse 5 also, we read like this. He will lift me up. 5वें में भी देखिए किस प्रकार से लिखा है, वो मुझे उठाएगा। 6 also, my head will be lifted up. और 6वें में देखो मेरे सर को वो उठाएगा। In verse 5, 5वें वचन में देखिए, he will lift me up from all troubles and evils. हर एक बुराई और दुख से मुझे उठाएगा। He will conceal me. He will conceal me in his tabernacle. वह मुझे छिपाएगा उसके मंडप में। He will hide me in his secret places. वह मुझे रखेगा वो गुप्त स्थान पर। During the time of temptations, जब परीक्षा के बीच में, during the time of troubles, जब परेशानियों से गुजरना पड़ता है, some evil temptations, जब बुरी इस प्रकार की परीक्षाएं आती हैं, he will conceal and hide in his secret places. तो वो हमें वो अपने गुप्त स्थान में हमें छिपा कर रखेगा। What a wonderful promises. कितना अच्छा एक वरदान है ये। 5 and 6. 5 और 6, These promises to whom? ये वरदान किसके लिए है? Verse 4. 4वां वचन, Lord, I have only one desire, प्रभु मेरे को एक ही आग्रह है, not two desires. 2 इच्छा नहीं है। I want to see your glory. आपकी महिमा मैं देखना चाहता हूँ। I want to be transformed to this glory. मैं उस महिमा में बदलना चाहता हूँ। That's all. That's all. बस वही एक ही चीज। Yes. For such people, they can claim. ऐसे लोगों को ये वरदाने वो मांग के ले सकते हैं, दावा कर सकते We हैं। can be lifted up तब हम उठ सकते हैं above this earth. इस संसार से। We can be lifted up above the enemy. उस शैतान के विरोध में हम खड़े हो सकते हैं। We can be lifted up हम these evil temptation situations. ये बुरी सारे परीक्षाओं के बीच में हम उठ सकते हैं। Yes. He had only one desire. एक ही इच्छा थी। Did God grant him? क्या- Did God provide him that position? क्या वो जो पद था उनको दिया क्या दावीद को? Yes. Nobody can hinder God's plan. परमेश्वर का हित हमारे जीवन में कोई नहीं रोक सकता। Yes. At the right time, he got it from God's hands. परमेश्वर के हाथ से अपने समय पर उसको मिला। In God's will should be done in God's way, in God's time. परमेश्वर का हित परमेश्वर की रीति में, परमेश्वर के समय पर। Not by chopping off Saul's head सॉल का सर को काट कर उसकी गद्दी ले लेना, ऐसा नहीं। before God's time.
परमेश्वर के समय से पहले No, right time he was placed as a king. सही समय पर दावीद को एक राजा के स्वरूप में खड़ा किया गया। So what's the conference theme? हमारे All that God has prepared for those who love him. हमारे कॉन्फ्रेंस का थीम क्या है? वो सारी चीजें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं। So God is so faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य है। So our part is to love him. हमारा जो भाग है वो एक ही है, परमेश्वर से प्रेम करना। Okay, one more song from David's life. एक और भजन संहिता। So this is after he became the king. Again he was sent out by Absalom his son. दावीद के जीवन से वो राजा बनने के पश्चात जब उनका बेटा अब्सलोम उनको भगा रहा था उस समय पर, Again David was tested in this area. वहां वापस दावीद को इसी परीक्षा से गुजर के जाना पड़ा। Psalm 63. भजन संहिता 63। Yes, God tested. परमेश्वर ने वापस उसकी परीक्षा ली। Second time. दूसरी बार। So that's a footnote behind that Psalm 63, no? Psalm of David when he was in the wilderness of Judah. वहां ऐसे टिप्पणी लिखी है, दाऊद का भजन जब वह यूदा के जंगल में था। So in this Psalm 63, you cannot find out even one petition, one prayer. यहाँ पर इस पूरे Either petition or supplication you cannot find in Psalm 63. ये पूरे 63 अध्याय में कहीं पर भी कोई विनती या प्रार्थना हम नहीं देखते हैं। Only we can see his thirst and his desire towards God. That's all. वहां केवल एक ही हम देखते हैं, उनका आग्रह, उनकी तीक्ष्णता परमेश्वर के साथ संबंध रखने के I लिए। shall seek you earnestly, my soul thirsts for you. मैं तीव्रता से तुझे ढूंढता हूँ, My flesh yearns for you. मेरा शरीर तुझको आग्रह करता है। Your loving kindness better than life. तेरी दया मेरे जीवन से भी बढ़कर है। So these are all things. ये सारी चीजें यहाँ लिखी है। His only desire. उनका एकमात्र आग्रह Where? When he was in the wilderness. कहाँ था? जब वो जंगल में था। Just I want to show the background of that Psalm 63. ये 63 भजन संहिता के पीछे क्या है वो मैं 2 दिखाना चाहता हूँ। Samuel chapter 15. 2 शमूएल 15 अध्याय। So through this, God wanted to test him again, David. इसके द्वारा परमेश्वर दावीद को वापस परीक्षा करना चाहता था। 2 Samuel chapter 15. 2 शमूएल 15 अध्याय। David flees from Jerusalem. दावीद यरूशलेम से भाग निकल रहा है। So you read from verse 14. 14वें वचन। 2 Samuel chapter 15 verse 14. और 2 शमूएल 15 का 14। तब दाऊद ने अपने सब कर्मचारियों से जो यरूशलेम में उसके संग थे कहा, आओ हम भाग चले, नहीं तो हम में से कोई भी अबशलोम से न बचेगा। इसलिए फुर्ती करते चले चलो, ऐसा ना हो कि वह फुर्ती करके हमें आ घेरे और हमारी हानि करे और इस नगर को तलवार से मार ले। Now here we read verse 23. While all the country was weeping with a loud voice, all the people passed over. The king also passed over the brook Kidron. All the people passed over toward the way of the wilderness. Verse 23, please read. 23 वचन। सब रहने वाले चिल्ला चिल्ला कर रोए और सब लोग पार हुए, और राजा भी किद्रोन नामक नाले के पार हुआ, और सब लोग नाले के पार जंगल के मार्ग की ओर पार होकर चल पड़े। Then Zadok also came and all the Levites with him carrying the ark of the covenant of God. वो लेव्य के लोग भी वो संदूक की पेटी लेकर वो भी चल निकले। Then they set down the ark of the God, and Abiathar came up until the people had finished passing from the city. और संदूक को एक जगह पे रखा और वे वहां से आगे निकले। Verse 25, 25वां वचन। see the spirit of David. दावीद की आत्मा को देखिए। King David said to Zadok, राजा ने सादोक से बोला, return the ark of God to city there. परमेश्वर के संदूक को नगर में लौटा ले जा। If I find favor in the sight of the Lord, then he will bring me back again and show me both it and its habitation. यदि यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो वह मुझे लौटाकर उसके और उसके
वास स्थान को भी दिखाएगा। If he says, I have no delight in you, behold, here I am. Let him do to me as seems to do to him, good to him. परंतु यदि वह मुझसे ऐसा कहे कि मैं तुझसे प्रसन्न नहीं, तो भी मैं जाहिर हूं, जैसा उसको भाए वैसा ही वह मेरे साथ वर्ताव करे। Yes, Sadok, listen. I was only expelled out from the kingdom. साधोक सुन, देखो मुझे मेरे महल से मुझे निकाल दिया गया। Yes, I only expelled from my palace. मैं ही यहाँ से बाहर निकाल दिया गया हूँ। You should not disturb the ark. वो संदूक की पेटी को नहीं हिलाना। You return the ark of God to the city. वो संदूक की पेटी को वापस लेके जा। If I find favor in the sight of the Lord, अगर परमेश्वर की दृष्टि में मैं उसका अनुग्रह yes, पाता हूँ, He will bring me back again to see Him, to see His habitation. That's all. तो परमेश्वर ही खुद मुझे वहां वापस लौटाकर उसकी मंदिर की दृष्टि मुझे दिखाएगा। Again, what was His desire? वहां देखिए उनकी आग्रह क्या थी। His glory and His habitation, that ark of God. उनकी महिमा और उनका स्थान, वही उनकी इच्छा थी। We don't read like this. हम इस प्रकार से नहीं पढ़ते यहाँ पे। If I find favor in the sight of the Lord, again He will bring me to the eldership. वहां ऐसे नहीं लिखा कि अगर मैं And there are some people that are waiting. If I find favor in the sight of the Lord, again He will bring me back again and put me in the position of elders. अगर परमेश्वर की आंखों में मुझे अनुग्रह मिलता है तो मैं वापस वो राजगद्दी में या वो अगुआ बन के मुझे स्थापित कर देंगे। वो नहीं थी उनकी इच्छा। That's not at all the desire. ये उनकी इच्छा थी ही नहीं। In Psalm 27 and Psalm 63, भजन संहिता 27, भजन संहिता 63 में दोनों में एक ही इच्छा है। that's why he could finish his race. इसीलिए वो अपना दौड़ पूरा कर पाए। That's why he could serve the purpose of God in his own generation. इसीलिए अपने दिनों में परमेश्वर का हित वो पूरा कर पाया। What a man of God. कितना अद्भुत परमेश्वर का जन। There are some people, कुछ ऐसे लोग हैं, if they are disciplined, if any person is disciplined in the church, means अगर कलीसिया में उनको किसी विषय में कुछ सुधार किया जाता है they will disturb the church also. तो वो पूरे कलीसिया को हिला देते हैं। That is demonic spirit. वो एक दुष्ट आत्मा से भरा हुआ That is चीज है। demonic. वो दुष्टता से भरा हुआ है। We have to learn. We have to sit at the feet of Old Testament David and we have to learn such lesson. हमें दावीद के पांव तले रहना है, वो जो पुराने नियम का था, और उससे सीखना है। Lord, now I'm being asked to step down or to be silent. अभी मुझे मेरे पद से नीचे उतार दिया है और मुझे बोला है कि तू शांत रहे। At any cost, I won't get offended or disturb the church or any families. मैं यहाँ बिल्कुल खेदित नहीं होऊंगा, ना ही मैं कलीसिया के कोई परिवार को मैं कोई हड़बड़ी मचाऊंगा। So not only eldership or facilitator positions, even when elders are asked to keep quiet for some time, you hereafter don't conduct any choir or PA system or whatever it the things. Be quiet means, yes, simply we have to be quiet. ये केवल अगुवे का स्थान या बड़े मुख्य स्थान उसके ही बात नहीं, कोई छोटा सा भी चीज बोलते हैं गाना मत गाओ या ये मत करो, वो सारी चीजें वैसे का वैसे हमें अनुसरण करना है। Yes, we should prove our love to God. हमें उन समयों पर हमारा परमेश्वर का प्रेम को दिखाना है। So no desire for all these things. इन सारी चीजों की हमको कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। Only desire हमारा God's glory, एकमात्र God's इच्छा beauty, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की सुंदरता, His likeness. उनके स्वरूप में होना। Such people, God can lift them up ऐसे लोगों को परमेश्वर उठाता है above Satan, शैतान के ऊपर, above sin, पाप के ऊपर, above the earth. इस संसार के ऊपर। Okay. One more person. I want to show the next person. मैं दूसरा व्यक्ति के विषय में भी आपको दिखाना चाहता हूँ। All that God has prepared for those who love Him. वो सारी चीजें जो परमेश्वर ने अपने से प्रेम करने वालों के लिए रखा हुआ है। Yes, at right time, God provided him that everything what he needed. वो सही समय पर जो चीजें दावीद को चाहिए था, वो सारी चीजें प्रभु ने प्रबंध किया। James chapter 1 verse 12. याकूब 1
अध्याय पहला James, अध्याय James chapter 1 verse 12. याकूब पहला अध्याय 12वां वचन। So this one, here also we see one promise. वहां पर भी एक वरदान हम देखते हैं। Verse 12. 12वां वचन। Blessed is a man who perseveres under trial, for once he has been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love him. याकूब 1:12 धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। Yes, blessed is the man Joseph धन्य है वो व्यक्ति यूसुफ who persevered under trial. जो परीक्षा से गुजर कर गया He had been approved. और वो अप्रूवल मिला उसको। He received the crown of life. उसको वो जीवन का मुकुट मिला। Yes, which the Lord has promised, which the Lord has prepared for him. जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा है। Yes, these words became true in the life of Joseph. यूसुफ के जीवन में ये जो वचन है वो पूरा हुआ। He persevered under trial. वो उस परीक्षा में से गुजर कर गया। He endured the trials and he endured the temptations. वो परीक्षा को उसने सहन किया। What's the secret? उसका रहस्य क्या है? Joseph, in the Old Testament, Joseph was a God conscious man. पुराने नियम में यूसुफ एक व्यक्ति था जो हमेशा परमेश्वर का सानिध्य पहचानता था। Always he set the Lord before him. उन्होंने हमेशा परमेश्वर को अपने सामने रखा। Even Psalm 16 was written by David. Before that, Old Testament Joseph, yes, he set the Lord before him always. दावीद का जो भजन संहिता 63 लिखने से पहले यूसुफ ने पुराने नियम में ही कई साल पहले ही ये चीजें उनके जीवन में था। From Genesis 37 to Genesis 50, जेनेसिस 37 से 50 तक in my Bible, उत्पत्ति के बाइबल में I underline those references just like this. Such a God conscious man. मैंने इस प्रकार से एक नोट लिखा है मेरे बाइबल में। More than 10 references, God, he used the term always God, 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 God. वो हमेशा कई बार ऑलमोस्ट 10 बार से अधिक इस प्रकार से वो स्वयं परमेश्वर को पुकार रहा है। So more than- परमेश्वर 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 प्रभु प्रभु। More than 10 references. ऐसे 10 बार वो बोलते हुए हम पढ़ते हैं। For example, उदाहरण के लिए Genesis chapter 39. उत्पत्ति 39 में हम जाएंगे। Verse 9. 9वां वचन। These are all the two major areas Joseph overcame. दो जगह जहां पर यूसुफ ने जय प्राप्त किया। One is sexual sin, एक है लैंगिक पाप, another one is bitterness. दूसरा है कड़वाहट। Yes, even now, आज भी these are all the major sins we are facing. ये वो मुख्य पाप हैं जो हम भी गुजर के जा रहे हैं। One is sexual sin, एक है वो लैंगिक पाप, other one is bitterness. दूसरा है कड़वाहट। Yes, we have to fight a good fight in these two areas. हमें इन दोनों क्षेत्र में हमें वो युद्ध करना है। But in the Old Testament period, Joseph, he overcame. परंतु पुराने नियम में यूसुफ ने इन चीजों पर जय प्राप्त किया। Only because of the love of God. उसका एकमात्र कारण था उसने परमेश्वर पर प्रेम रखा। Only because of the fear of God. वो परमेश्वर का भय के कारण He loved God and feared God. उन्होंने परमेश्वर से प्रेम किया और परमेश्वर का भय माना। See verse 9, 39 verse 9. 39 का 9वां वचन हम There is पढ़ेंगे। no one greater in this house than I, and he has withheld nothing from me except you, because you are his wife. How then could I do this great evil and sin against God? इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? As she spoke to Joseph day after day, he did not listen to her. और 10वां वचन, ऐसा हुआ कि वो प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही पर उसने उसकी न मानी। So, still, even now,
He speaks. Even now, Joseph speaks to us. आज भी यूसुफ इन वचनों के द्वारा हमसे बातें कर रहा है। Such a Old Testament man, God-fearing man. एक पुराने नियम का परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति। Just I want to show one more verse in Psalm 97 verse 10. Such a wonderful verse. एक और वचन दिखाना चाहता हूँ भजन संहिता 97 से। Again, we'll come back to this passage. हम इस भाग में वापस आएंगे। Psalm 97 verse 10. Psalm 97। Who will hate sin? कौन पाप को घृणा करेगा? 97 verse 10. 97 का 10वां वचन। You who love the Lord, hate evil. हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो। Again, you who love the Lord, hate evil. यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो। So, such people alone can hate evil. ऐसे लोग ही बुराई से घृणा कर सकते हैं। So, not avoiding sin. पाप से बचना नहीं। Yes, that's one. We have to come up. हमें इस प्रकार से उठना है। Avoiding sin, पाप से बचना hating sin. और पाप से घृणा करना। So, those who love the Lord will hate sin. जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वो बुराई से घृणा करते हैं। Yes, those who love the Lord will hate these sexual sins. जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो लैंगिक संबंध के पापों को घृणा करेंगे। Even if it is not profitable. अगर वो In the usage of mobiles. अगर मोबाइल जैसे चीजों का उपयोग से हमको फायदा लाभ नहीं होता है। There are sinful things, कुछ है पापमय चीजें, lawful things, कुछ है सही है, profitable things. और ये बहुत मुनाफा होता है। Yes, all the three things are in this. ये तीनों चीजें इसमें भरी हुई हैं। One is sinful, एक है पापमय, another is lawful, एक है ये सही है, another is profitable. और एक है लाभदायक। Those who are godly people, those who are godly, God-fearing people, जो दैविक हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, those who love the Lord, जो परमेश्वर से प्रेम करते they हैं, will even hate the lawful things also. वो चीजें जो सही हैं उनको भी वो घृणा करते हैं। So this is what we learn from Paul's life. यही हम पौलुस के जीवन से देखते हैं। All things I can experience, हर एक चीज मैं उसको पा सकता हूँ, but all things are not profitable to me. लेकिन वे सारी चीजें मुझे लाभदायक नहीं हैं, But all things are not edifying me. और वो मुझे उन्नति नहीं लेके आता So है। such people, those who love the Lord, will go to the upper level, that is profitable level. जो इस प्रकार से परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो उच्च लाभदायक स्थिति की ओर जाते हैं। So there are nowadays even our believers, even in our midst, even in our CFC churches midst, there are people spending time in lawful things. They are wasting their time. Instead of spending the time in the Word of God, they are spending in shorts, YouTubes, watching unnecessary things, lawful things. हमारे बीच में भी, हमारे सीएफसी कलीसियाओं के बीच में भी इस प्रकार के जो सही लगता है उन चीजों में, उनके मोबाइल में, शॉर्ट्स में, यूट्यूब में बैठकर समय इतना बिताते हैं कि वो नष्ट करते हैं जो समय उनको परमेश्वर के वचन पढ़ने के लिए उनको उपयोग में लाना था। Yes, our wives will testify about us. हमारी पत्नियां उस विषय में हमारे विरोध में वो खड़े होंगे, They are with us. वो गवाही देंगे और वो हमारे साथ है, देख रहे हैं। 24/7, they are with us, they are watching us. What type of things we are watching, how we are spending our time. 24 घंटे वो हमारे साथ है, वो देख रहे हैं हम कैसे अपना समय का व्यतीत कर रहे हैं। Yes, we should spend time for the glory of God. हमें हमारा समय परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग में लाना है। It should be profitable time. वो सारा बहुमूल्य होना चाहिए, लाभदायक होना चाहिए। So watching filthy things, that's a lower level. That is sinful level. अशुद्ध चीजों को देखना वो एकदम निचला स्तर है। In one point of time, the Lord convicted me. एक समय पर परमेश्वर ने मेरे को इस प्रकार से मुझे बताया। So if you hate such these lawful things, अगर तू ये जो सही लगते हैं उन चीजों को तू घृणा करेगा, so that your conscience will be very sharp. तो तेरा जो विवेक है वो बहुत ही शार्प हो जाएगा। Yes, our conscience should be sharp.
वो तेज हो जाएगा। और हमारा विवेक किस प्रकार से हमें तेज रखना है। Do you want to be your conscience very sharp? आप चाहते हो कि आपका विवेक इस प्रकार से तेज रहे? I tell you one secret. तो मैं एक रहस्य बोलना चाहता हूँ। So this is the Holy Spirit convicted me. यही परमेश्वर ने मुझसे बातें किया। You are spending time in lawful things. तू सही चीजों के ऊपर तेरा समय व्यतीत कर रहा है। Leave it all these things. Come out. उन चीजों को छोड़ दे, उसमें से तू बाहर आ जा। Spend your time in profitable things. तू उन लाभदायक चीजों में तेरा समय व्यतीत कर। As the result, उसके कारण क्या हुआ? our conscience will be so sharpened. तो हमारा विवेक जो है वो तेज हो जाता है। Even in the little things also, वो छोटे छोटे चीजों में भी we can have that conviction of sin. वो पाप का एक कन्विक्शन हमारे जीवन में आ सकता है। Yes. बोध आएगा। Those who love the Lord, they will hate sin. Hate evil. परमेश्वर से जो प्रेम करते हैं वो बुराई से घृणा करेंगे। Old Testament Joseph, he hated sin. पुराने नियम का यूसुफ ने इस प्रकार से पाप से घृणा किया। How can I sin against my Lord? मैं मेरे परमेश्वर के विरोध में कैसे पाप कर सकता हूँ? He flee. वो वहां से दौड़ निकला। Daily. हर रोज भागता रहा। My dear brothers, especially husbands, मेरे brothers, भाइयों, पतियों, we have to be very careful in our eyes. हमारे आंखों में हमें जागरूक रहना है। We should keep our eyes always clear. हमारे Purity. हमारे आंखों को हमें शुद्ध रखना है। We should determine in our heart not to defile by these things. हमें ये निष्ठा निर्णय हमारे मनों में रखना है कि हम हमारे आंखों को अपवित्र नहीं करेंगे। In the recent past, पिछले गए हुए दिनों में I had to travel from my local place to Chennai, Tambaram. मेरे स्थानिक जगह से मुझे तांबरम चेन्नई में जाना पड़ा। That's 4 hours travel. वो 4 घंटे की यात्रा है। So in a particular station, I boarded into the train. मैं एक जगह पर मैं ट्रेन में चढ़ा। That my seat was reserved. वहाँ मेरा सीट वहाँ रिजर्व था। In that coach, that when I entered the coach, I found my seat was the middle seat of the 3 seats. तो मैं जब वो कोच में अंदर गया तो डब्बे में मैं गया तो वहां पर मेरा सीट में 3 लोगों का सीट था, उसमें मेरा बीच का सीट था। Okay, here one 27 or 28, something below 20, one young girl was adjacent side, this side, left side. 20 या 25 साल की एक लड़की मेरे इस तरफ थी। One old man that was again about 60 or 70 years. There's this side, right side. और दूसरी तरफ एक वृद्ध मनुष्य में भी 60 या 70 साल का था। Okay, I got my seat and sat there. और मेरा सीट जो था बीच में मैं बैठ गया। The Holy Spirit immediately तो whispered in my eyes. पवित्र आत्मा ने मेरे कानों में इस प्रकार से बोला। So some young girl is sitting by your side. एक जवान लड़की तेरे बाजू में बैठी है। So you should not. You should sit in a manner just like this, not this way. तुझे एकदम सटीक होके वहां बैठना है, ऐसे फैला के नहीं बैठना है। वहां एक लड़की बैठी है। Yes, there are 2 ways of sitting. 2 रीतियां हैं बैठने का भी। One is lawful, no lawful. एक है Lawful. So this seat is up to this area, no? ये मेरा सीट है तो इतना जगह मैं ले सकता हूँ, ये सही है। I can sit freely. This is my lawful. तो मैं सही रीति से बैठ सकता हूँ, ये सही है न्याय के हिसाब से। What is profitable? परंतु लाभदायक क्या है? Okay, sit like this. मैं थोड़ा ऐसे सटीक होके बैठूंगा। For how many hours? कितने घंटे? 4 hours. 4 घंटे। Beware. हमें जागरूक रहना है। There is living before the consuming fire. ये वो ज्वाला में परमेश्वर के सामने जीना है। Okay. The other thing, एक और चीज, in this 4 hours travel, ये 4 घंटे के रास्ते में यात्रा में you should not look at her face. एक बार भी तू उस बच्ची के मुंह को नहीं देखेगा। Without seeing her face, get down from the train. उसको देखे बिना ही तू ट्रेन से उतरकर निकल जा। Because we have made a covenant with our eyes, no? क्योंकि हमने Job chapter 31,
verse 1, Job says, हमने एक वाचा बांधी है हमारे हृदय में, जिस प्रकार से आयूब ने 31वें अध्याय में लिखा है। yes, number of times we have seen that verse. हमने वो वचन कई बार देखा है। There may be some new brothers or families. शायद- Again, we'll see. नए भाई और नए परिवार हमारे बीच में हो सकते हैं, हम वापस देखेंगे उस वचन को। Job chapter 31. इयोब 31। If you have not already seen this verse, yes, let us see now. अगर आपने नहीं देखा है तो ये वचन हम वापस Such a देखेंगे। old covenant, God-fearing man made such covenant with his eyes. पुराने नियम का ऐसा भक्त जन ने ऐसा एक निर्णय अपने जीवन में लिया है। 31:1. 31 I have made a covenant with my eyes. How then could I gaze such a virgin? मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंख लगाऊं? If we gaze at a virgin means अगर मैं ऐसे एक कुंवारी को देखता हूं we cannot expect any portion of God from above. तो परमेश्वर से मुझे कुछ भी भाग नहीं मिलेगा। Will such person cannot inherit the heritage of the Almighty from on high? वो संपत्ति जो स्वर्ग से आती है वो मुझे नहीं मिलेगी। Yes, we are seeking for the power of the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा की शक्ति के लिए आग्रह कर रहे The हैं। portion of God, वो परमेश्वर से हमें मिलता है। the inheritance from the Almighty. वो संपत्ति परमेश्वर से हमें मिलता है। How can we receive? वो कब मिलेगा हमें? See how this is related with our eyes. देखिए कितना वो जुड़ा हुआ है हमारे आंखों के साथ। Old Testament man Job got light in this area. देखिए पुराने नियम का इयोब को इस प्रकार से एक प्रकाशन मिला। So I plead unto you. इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, We have to be faithful in this area. इसलिए हमें इस क्षेत्र में हमें विश्वास योग्य रहना है। See what he asked, what he says, what is the portion of God from above? परमेश्वर की स्वर्ग से जो संपत्ति है वो क्या है? If you have not made a covenant with your eyes, how can you expect the portion of God from above? अगर आपने अपने आंखों के विषय में एक इस प्रकार का निष्ठा नहीं रखा तो आप कैसे सोचोगे कि स्वर्ग की संपत्ति आपको मिलेगा? At any cost, हर we should not lose our fire in our eyes. किसी भी परिस्थिति में हमारे आंखों के वो आग को हमें बुझाना नहीं है। Fiery eyes. वो आंख जो आग से भरा हुआ है। Okay, 4 hours travel. 4 घंटे की यात्रा। Be at distance. तू एक दूरी रख, Don't look at their face. उसका मुंह मत देख। After 2 hours travel, 2 घंटे की यात्रा के बाद there are some vendors, no? Vade vendors. वो वड़ा लेके आने वाले लोग, वो वेंडर्स। This young girl, she got some 2 vadas. तो वो जवान लड़की ने वहां उनसे 2 वड़ा लिया। Okay. वड़ा लिया She asked me, और मेरी और मुड़ के पूछा, Uncle, do you want to take vadai? अंकल आप लेना चाहते हो क्या वड़ा? Oh, sorry, thanks, no thanks. हाँ, without- धन्यवाद थैंक यू बोल के मैं हट Without गया। looking at her face. उसको देखे बिना मैंने थैंक यू बोल के मैं मुड़ गया। Sorry, ma, thank you. क्षमा करना मेरी माँ बोल के मैं मुड़ गया। We have to be very faithful. हमें इन चीजों में विश्वास योग्य रहना है। Yes, these are all the areas, small little areas. देखो ये छोटी छोटी जगह हैं जहां पर हमें विश्वास योग्य रहना है। Yes, God is watching us. ये सारी चीजें परमेश्वर देख रहा है हमारे जीवनों को। So now, इसलिए- see, our in the days of evil, the days of temptations, He will hide us in His shelter. देखो इन बुराइयों की परिस्थिति में परमेश्वर हमें उसके गुप्त स्थान में हमें संभाल के रखता है। So इसलिए this is about Joseph. ये यूसुफ के जीवन से है। Yes, he had only desire. उनका एकमात्र आग्रह था। He hated evil. उन्होंने बुराई को घृणा किया। Even he hated that hatredness and bitterness also. और वो कड़वाहट और बुराई सब कुछ उसने नहीं चाहा। Okay, one more. So wonderful, my favorite young girl, that's Ruth. और एक और Wonderful character. मेरे पसंदीदा बहन रूथ। Such a violent young girl. और वो कितना शूरवीर थी। Oh, she was so vehement and violent to hold her
mother-in-law Naomi. और वो इतना शूरवीर थी कि उसने अपने सास को भी साथ में लेके गई। So Orpha, he went back to his own people and own God and own culture. औरफा जो थी वो अपने गांव में अपने लोगों के साथ वापस लौट के चली गई। So in my dictionary, I have a dictionary for Orpha and dictionary meaning for Orpha. That is double-minded girl. मेरे Orpha means double-minded. This is my dictionary. मेरे पास भी एक डिक्शनरी है, उसके अंदर मैंने सारे वचन के अर्थ लिखे हैं। उसमें ओरफा मतलब कि वो मन फिरा के चली गई। Okay. Ruth, रूथ कैसी थी? single-minded. एक मन वाली, एक चित्त वाली। You don't ask me, is it the real meaning of that? आप ऐसा ना पूछे कि क्या यही उसका अर्थ है। This is my dictionary. ये मेरा डिक्शनरी है। Ruth, single-minded girl. रूथ एक मन वाली, Orpha, double-minded. ओरफा दो मन वाली। She was only one mind. She had only one mind. उसके मन में एक ही हित था, चित्त था। Her desire only God. उनका एक ही इच्छा था, परमेश्वर। Her mother-in-law told her many things. If you come along with me means I cannot give you husband. उनके सास ने कई चीजें ऐसे बोला कि अगर तू मेरे साथ आएगी तो मैं तुझे कुछ नहीं दे पाऊंगी। Okay, even if there is no husband, it's okay for me. उन्होंने बोला हाँ मुझे पति ना मिले तो भी चलेगा, मैं आपके साथ आती हूँ। So there will be no food. तेरे को खाना नहीं मिलेगा, It's okay for me. चलेगा, वो भी चलेगा। There you are so young girl, you cannot find any pleasure. It's okay for तू me. जवान लड़की है, तेरे को कोई भी आनंद नहीं मिलेगा। There's no house to dwell. वहां रहने के लिए कोई घर नहीं है मेरे को। Okay, that's no problem for me. वो भी चलेगा। Then why do you come with me? तो तू क्यों आ रही है मेरे पीछे? Yes, I want Jehovah. मुझे यहोवा चाहिए। Yes, I want Jehovah. मुझे यहोवा चाहिए। Praise the Lord. महिमा हो परमेश्वर की। So, did she get anything from क्या- from God? क्या उनको परमेश्वर से कुछ मिला? She got everything. उसको सब कुछ मिला। Husband, children, estate, everything. उसको पति मिले, बच्चे मिले, जो धन संपत्ति सब कुछ मिला। All that God has prepared for those who love Him. वो सारी चीजें जो परमेश्वर ने उनसे प्रेम रखने वालों के लिए बनाया हुआ है। Either David or Joseph or Ruth. चाहे वो दावीद हो या रूथ हो, They all loved their God wholeheartedly. वो सबों ने परमेश्वर से प्रेम रखा। They had only one desire. उनके मन में एक ही इच्छा थी। That's all. वही। God in His time, He provided everything for them. और उन सबों के जीवन में अपने समय पर परमेश्वर ने सभी अच्छी चीजें उनको दी। Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की Please महिमा pray. हो। प्रभु हम आपके सामने पूरा खुला, प्रभु हम आपके सामने खड़े हैं। आप हमें जानते हो प्रभु, अंदर से बाहर। हम जिस दिन से प्रभु आपको जब पहचानते नहीं थे, तब से हमारे माँ के गर्भ से आप हमें पहचानते हो। हमारे हर एक चीजों को, हमारा पतन, हमारा उठना, सब कुछ आप जानते हो प्रभु। हम अपने आप को पूरी रीति से आपके हाथ में सौंपना चाहते हैं। इतना अच्छा सुसमाचार प्रभु हमारे जीवनों में कार्य करके हमें वो उच्च चीजों की ओर हमें लेके जाएं प्रभु। ये आपका हित है, इसलिए आप हमसे बातें कर रहे हो, ताकि हम उठकर प्रभु वो दुष्ट चीजें या वो न्यायी चीजों पर नहीं, परंतु जो लाभदायक है उसको हम पकड़े प्रभु। ऐसे हमें बढ़ाइए, हमारी कानों को खोलिए, हमारे आंखों को खोलिए, ताकि वो वाणी सुन पाए प्रभु और आपकी ओर मुड़े प्रभु। इस प्रकार आपके जन को प्रभु खड़ा कीजिए, आपके कलीसिया को आप बांधिए। सब कुछ प्रभु यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen.